Good morning, students. Today we are going to start the second chapter of our syllabus. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Ellen East, right? Students, first I just want to introduce the whole chapter to you. Means we have to summarize the chapter and then we have to start it with our textbook, right? Students, as far as the question of this chapter, we are not afraid to die if we can all be together, presents a vivid account of a risky voyage. Voyage जो होती है, जो word voyage है, that is sea journey is known as voyage, जो समुद्री यात्रा है. ये जो पूरा चैप्टर है, that is about a risky sea voyage, and that voyage is undertaken by the narrator with his wife Mary and children. And students, the whole chapter focuses on the value of living and sinking together, right? And as far as the question of theme is concerned, this story, I think two themes are there. So the first theme, this story of adventure brings home the idea that it's an adventurous story, right? So the story of adventure, this we are not afraid to die, brings home the idea that if we are determined and hopeful, right, if we are determined and hopeful, we can come even out of the jaws of death itself. Means the bravery shown by the two children inspires the captain, their father, to continue the struggle till the ship lands somewhere safely. You can also say that in spite of being badly injured, the children shows exemplary courage. It is this type of courage which makes one overcome all negatives or odds on the way to success. So students, as far as the second theme of the chapter is concerned, another theme of the story is that human instinct for survival works even in the most desperate situation. चाहे कितनी भी डिसअपॉइंटेड सिचुएशन हो, कितनी भी निराशापूर्ण स्थिति हो, जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल के लिए, वो लास्ट तक वर्क करती है. ऐसा जैसा कि आपको चैप्टर में मैं बताऊंगा, व्हेन द कैप्टन, जो कैप्टन है, कैप्टन इज थ्रोन इनटू द सी, देन ही फील्स फॉर ए वाइल दैट इज एंड इज नियर, बट देन द विल टू सर्वाइव ओवर पावर्स एंड ही स्ट्रगल्स हार्ड एंड इज एबल टू बी ऑन द बोर्ड अगेन. एज फार एज जो उसके साथ लैरी एंड हर्ब हैं, लैरी विजिल एंड हर्ब सिगलर जो हैं, वो टू क्रूमेन्स हैं उनकी फैमिली के साथ, लैरी एंड हर्ब, द टू फॉरनर्स हु शो रेयर करेज एंड वर्क हार्ड टू सेव द शिप. So students, the whole chapter is about, you can say, about a sea voyage, a adventurous journey. As far as the question of title of this story is concerned, the title of the story comes from the words spoken by the captain's son. कैप्टन्स सन, उसका जो बेटा है जिसका नाम जॉनथन है चैप्टर में, उसके वर्ड्स हैं जो हमारा चैप्टर का टाइटल है. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव वर्ड्स बिकॉज दीज वर्ड्स ब्रिंग आउट द स्पिरिट ऑफ करेज ऑफ द कैप्टन्स फैमिली. तो जो दो भाई बहन हैं, जॉनथन एंड सुजेन, ब्रेवरी इंस्पायर्स द कैप्टन to fight the odds and come out victorious of the stormy water, right? So जो Jonathan words in particular reveals that death does not discourage those. ये जो word है ना, मैं टाइटल को सिग्निफाई कर रहा हूँ, टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ये जॉनथन के वर्ड्स हैं. इन पर्टिकुलर ये क्या रिवील करते हैं? इट रिवील्स दैट डेथ डज नॉट डिस्करेज दोज हु आर विलिंग टू फेस इट ब्रेवली, राइट? Means nothing can cow down a brave heart. So students, ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उसमें कैप्टन कैप्टन है, उसकी फैमिली में उसका बेटा जॉनथन है, उसकी बेटी सुजेन है और उसकी जो वाइफ है मैरी है. इसके अलावा उनके साथ जर्नी में जो मैंने अभी बोला, हर्ब सिगलर, लैरी विजिल एंड हर्ब सिगलर, वो दोनों भी उनके साथ रहेंगे. लैरी विजिल एंड हर्ब सिगलर जो हैं वो दोनों जो हैं क्रूमैन हैं. जो लैरी विजिल हैं वो अमेरिकन हैं एंड हर्ब सिगलर जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड से हैं, राइट?
सो इस तरीके से जो है पूरी स्टोरी चलेगी ये। जो जॉनथन है वो 6 ईयर ओल्ड है, जो उसकी सुजेन जो बहन है उसकी 7 ईयर ओल्ड है, और जो कैप्टन है उसकी जो वाइफ है मैरी, राइट। सो स्टूडेंट्स, द होल स्टोरी shows means we are not afraid to die, we can all be together presents a vivid account of a risky sea journey, and that would be undertaken by the narrator, with whom, with his wife and children, and associate also companion with Larry Wiesel and Herb Sigler. Means the particular lesson gives a graphic account of the voyage undertaken by the narrator, right? His wife, his son Jonathan, and daughter Suzanne. So let's start the chapter. Means the whole chapter is about a adventurous sea journey, right? You see many of the expressions here, and we discuss these expressions in the chapter, right? So start the chapter. So let's start. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England. And I set sail from set sail means started a sea voyage. Sea voyage होती है समुद्री यात्रा. प्लाईमाउथ एक प्लेस का नाम है इंग्लैंड में. To duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. देखो, in the wake of means in the wake of means आप किसी को फॉलो कर रहे हो, यार गो बिहाइंड समथिंग. किसके? द फेमस एक्सप्लोरर, एक और जो एक्सप्लोरर है. एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. और पिछले 16 years से ये लोग जो अपना लेजर टाइम है, लेजर मीन्स जो खाली समय है, जो इंजॉयमेंट टाइम है, ये बिताते हैं किस में? टाइम हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स. देखिए टाइम हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल. व्हाट इज में हॉर्निंग? स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ हॉर्निंग इज शार्पनिंग. क्या शार्प करने में? आवर सी फेयरिंग स्किल्स. स्किल्स किसको बोलते हैं? व्हाट डू मीन बाय स्किल्स? कहते हैं यार उसके अंदर स्किल है तो वो बहुत आगे निकल गया. सो इन दैट सेंस द मीनिंग ऑफ स्किल्स इज कॉम्पिटेंस, क्योंकि वो बंदा बड़ा कॉम्पिटेंट है. यहाँ स्किल्स का मीनिंग लिखिए आप कॉम्पिटेंस, राइट. एंड हॉर्निंग का मतलब शार्पनिंग, राइट. व्हाट इन में सी फेयरिंग स्किल्स. स्किल्स तो हो गया, इंटेलिजेंस भी बोल दिया आपने स्किल्स को, कॉम्पिटेंस भी बोल दिया. सी फेयरिंग क्या है? स्टूडेंट्स, ट्रेवलिंग ऑन द सी इज नोन एज सी फेयरिंग. तो उन्होंने क्या शार्प करी? अपनी सी पर ट्रैवलिंग की जो स्किल्स थी, जो इंटेलिजेंस थी, उसको शार्प किया. मीन्स प्रैक्टिस करी इन द ब्रिटिश वाटर्स, क्योंकि उनका एक एम था, एक एम्बिशन था. दे want to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook, right. Now in the upcoming paragraph you see the description of the particular boat. With the help of that boat they are able to duplicate the round the world voyage, right. See, our boat Waywalker boat का नेम है. A 23 meter, see the description, a 23 meter 30-ton wooden hulled beauty. wooden में hulled students स्ट्रक्चर को बोलते हैं hulled. इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है that is wooden, right. had been professionally built. wooden में professionally हम कहते हैं यार वो बंदा बड़ा प्रोफेशनल है. प्रोफेशनल मीन्स आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, मीन्स आप उस चीज़ में वेल ट्रेंड हो. तो मैं प्रोफेशनली को बोलूँगा वेल ट्रेंड इन ए जॉब इज़ नोन एज प्रोफेशनली, राइट. तो इस जो ये प्रोफेशनली वर्ड यूज़ हुआ है उस बोट के लिए कि उसको प्रोफेशनली बनाया गया है. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट. एंड वी हैड स्पेंट
months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. देखो, and we had spent months fitting it, कई महीनों जो है हमें इसमें लग गए, fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. देखिए, we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. काफ़ी समय तक उन्होंने उसको समय बिताया. एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट मीन्स सबसे खराब, राइट. मोस्ट हॉस्टाइल इज नोन एज रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. मतलब उसकी जो टेस्टिंग करी है वो रफेस्ट से रफेस्ट सिचुएशन में करी है. द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 ईयर, 3 साल का उनका प्लानिंग जर्नी है. उसका जो फर्स्ट फेज है, जो फर्स्ट लेग है, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन. देखिए जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली. प्लीजेंटली मतलब आराम से, खुशी, डिलाइटफुली जो है कंप्लीट हो चुकी है. एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट. व्हाट इज हेडिंग? Here the meaning of heading is moving towards east. You must write down all the words which I tell you, right? Heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Siegler. Now see the 2 new characters in the particular story, the 2 crewmen with the family members. The first one is American Larry Wiesel. ये अमेरिकन नेटिव हैं और दूसरे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के हैं, हब सिगलर. टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज. जो हमें हेल्प करेंगे, जो क्रूमैन हैं, टैकल वन ऑफ द, व्हाट इज टैकल? टैकल मीन्स फेस. हम कहते हैं ना, हमने यार उस सिचुएशन को बड़ा अच्छी तरह टैकल किया, मीन्स फेस किया. वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज. और वर्ल्ड के रफेस्ट सीज में कौन सा सीज आता है? जो हमारे इंडिया के नीचे है, जिसको हम क्या बोलते हैं? द सदर्न इंडियन ओशियन. द सदर्न इंडियन ओशियन. नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ सी, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. देखिए, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, राइट. केप टाउन जो है कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट. ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. एनकाउंटर मीन्स सामना, फेस करना, ठीक है ना. सामना करने लगे. किसका सामना करा? स्ट्रॉन्ग गेल्स. व्हाट इनमें गेल्स? स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स आर नोन एज गेल्स. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स they blew continuously.